Greetings to one and all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. It is indeed our joy and privilege to hear from the Word of God. And we have Mr. Ashish Sirilbhai Christian from Gujarat to share the Word of God amidst us today. He has done his Master of Theology from the Missiology Department and is serving as a faculty in Nepal Theological College and Nepal Ebenezer Bible College, Kathmandu since 2017. The title for today's meditation is Identity in Jesus Christ, based on the book of Acts chapter 3 verses 1 to 10. We hope and we pray that we all will have a blessed time together hearing from the word. May God bless us all. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अजोड़ नाम में हम आप सबों का अभिवादन करते हैं। आप सबों को इतवार की सलाम। आज हमारे मध्य में प्रभु का वचन मिस्टर आशीष सिरिलभाई क्रिश्चियन बांटेंगे, जो गुजरात से हैं और उन्होंने यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी में से अपने MTH का अभ्यास मिशोलॉजी का डिपार्टमेंट में किया है और वे फ़िलहाल नेपाल थियोलॉजिकल कॉलेज और नेपाल एबेनेज़र बाइबल कॉलेज में एक अध्यापक के तौर पर हैं। वे 2017 से काठमांडू में वहाँ पर ये सेवकाई कर रहे हैं। आज के हमारे मनन का शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह में हमारी पहचान, जो कि प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय 1 से 10 वचन पर आधारित है। हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि हमारा समय आशीषित रहेगा। Greetings to all in the mighty name of Lord and Savior Jesus Christ.
हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महान नाम में मैं आप सबों का अभिवादन करता हूँ। God is good all the time. परमेश्वर हमारा हर एक समय भला है He is always concerned for his people. और उसके लोगों की वो हमेशा चिंता रखता है। And that's why the wonderful song and scripture says, even though I walk through the valley, I will not be fear. और इसीलिए ही एक बहुत ही अच्छा गीत और परमेश्वर का वचन कहता है कि भले ही मैं मृत्यु की खाई से क्यों ना गुजरूं पर मैं नहीं डरूंगा। Before we go further, let us pray and ask help from the God, and He will lead for the further things. आइए आगे जाने से पहले हम प्रार्थना Gracious Lord, we want to thank you for this time. We want to thank you for this amazing love for us. Lord, as we are going to share the word, as we are going to meditate upon this word, Lord, we ask your help. Speak to us. Open our hearts and mind to listen. And Lord, let Jesus will be glorified. In Jesus' name, Amen. Today portion I would like to read from the Acts of Apostle, chapter 3, verses 1 to 10. आज के लिए जो शास्त्र पाठ लिया गया है वह है प्रेरितों के कार्यों में से 3रा अध्याय 1 से 10 पद को हम पढ़ेंगे। I will repeat again and then I will read it in English and then Brother Joel will help us. Acts chapter 3 verses 1 to 10. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Amen. आज का शास्त्र पाठ प्रेरितों के कार्य 3रा अध्याय 1 से 10 पद को हम पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसके वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, "हमारी ओर देख।" अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, "चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास जो है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर।" और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई वे बहुत ही अचंभित और चकित हुए। Okay, thank you, Brother Joel, for reading this wonderful passage. This is one of very popular incident which happened when disciples were active in ministry. ये एक बहुत ही प्रचलित ऐसा भाग है, घटना है जिसके अंदर हम पाते हैं
कि चेले जो थे वो सेवकाई में बहुत ही सक्रिय थे। Today I want to bring a concept which will really help us to understand who we are and what is our responsibility. और मैं आज आपके सामने एक ऐसा अनोखा विचार रखना चाहता हूं जो शायद हमें मदद करेगा कि हम समझ पाएंगे कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए। Here different characters have different work and different responsibilities. यहाँ पे अलग अलग चारित्रों के लिए अलग अलग कार्य और अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। Out of that, I want to highlight a small sharing with the title. और उसमें से मैं एक छोटे से मनन को आपके सामने एक शीर्षक के साथ रखना चाहता हूं। Identity in Jesus Christ. हमारी पहचान यीशु मसीह। New identity in Jesus Christ. यीशु मसीह में हमारी नई पहचान। Before we go further, I will just give you a context what is happening here in this passage. और आगे बढ़ने से पहले मैं छोटे संक्षिप्त में आपको बस इस पूरे शास्त्र भाग का जो मुख्य संदर्भ है वो समझाना चाहता हूं यहाँ पे। Now, book of Acts or Acts of Apostles begin with the historical evidences of the early church. और यहाँ पर शुरुआत में ही प्रेरितों के कार्यों की पुस्तक के अंदर जो ऐतिहासिक सबूत है पुरानी कलीसिया के, वहां से उसकी शुरुआत होती है। Now, Jesus' physical presence is not there. अभी यीशु मसीह का शारीरिक उपस्थिति अभी वहां पर मौजूद नहीं है। For the work he came down, he finished the work, he went back to the Father. और जिस कार्य के लिए वे आए थे वो पृथ्वी पर वो कार्य खत्म करने के बाद अभी वो पिता के पास वापस जा चुके हैं। He gave an assurance to the disciples in Acts 1:8. और प्रेरितों के कार्य 1 और 8 के अंदर यीशु मसीह ने चेलों को एक बहुत ही चौकस, एक बहुत ही नक्की ऐसी बात उनको बताई थी। It was an assurance of providing a helper or supporter as a Holy Spirit. और ये जो वचन परमेश्वर यीशु मसीह ने जो दिया था वो ये था कि वो चेलों को एक सहायकर्ता, एक मददनीश भेजेंगे पवित्र आत्मा के नाम में। Second chapter, when we read the anointment of Holy Spirit and the Peter's sermon, we can see. और फिर दूसरे अध्याय के अंदर अगर अभ्यास करेंगे तो चेलों को अभिषिक्त किया गया था वहां पर पवित्र आत्मा से, और उसके बाद पतरस का संदेश वहां पर लिखा गया है। Now the third chapter, Peter and John, they are going for a particular task. और यहाँ पर तीसरे अध्याय के अंदर अभी पतरस और यूहन्ना एक कोई खास कार्य करने के लिए वहां पर जा रहे थे। The very important and responsible work for the prayer time, for that they were going in the afternoon. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी पूर्वक ऐसा जो कार्य था वो ये था कि दोपहर के समय में वे प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। And there they found a person who was sitting from a long time at the beautiful gate. और वहां पर उन्होंने देखा कि एक जो पुरुष था वो काफी लंबे अरसे से सुंदर नाम के इस फाटक पर बैठकर भीख मांगता था। Now out of this, I just would like to bring out a concept that with Christ, or when we are in Christ, when we follow with Christ, our identity change. और फिर इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने एक ऐसा विचार रखना चाहता हूँ और ये आपको समझाना चाहता हूँ कि जब आप यीशु मसीह में होते हैं या फिर आप जब यीशु मसीह के अनुयायी बनते हैं तो आपकी जो पहचान है वो पहचान पूर्ण रीति से नई हो जाती है। As a human being, we have lots of questions in our mind. एक मानव होने के नाते हमारे मनों के अंदर अनेक प्रश्न उठते ही रहते हैं। Sometimes you don't have questions, others will ask you the questions. काफी बार आपके अंदर जवाब प्रश्न नहीं होंगे परंतु दूसरे लोग आके आपको प्रश्न पूछेंगे। Common questions: who we are, who am I? और सबसे साधारण प्रश्न हम कौन है या फिर मैं कौन हूँ। What is our identity? हमारी पहचान क्या है। You may be or we may be know as my name or my look or the family I belongs to. और मेरी और आपकी पहचान शायद हम कैसे दिखते हैं, हमारा नाम क्या है या फिर हमारी पारिवारिक, हमारी पूरी इतिहास क्या है, उस पे से हम जाने जाते हैं शायद।
And people will come to know, oh, this is the son of this person. और फिर लोग को पता चलेगा, हाँ ये इसका बेटा है, Or she is a daughter of this person. या फिर ये इसकी बेटी है. Now, when we are in Christ, what is our identity? अब जब हम यीशु मसीह में होते हैं तो हमारी पहचान क्या होती है? When we say that I accepted Jesus Christ, I follow Jesus, and I am a disciple of Jesus Christ, जब मैं कहता हूं कि मैंने यीशु मसीह का अपने जीवन में स्वीकार किया है, यीशु मसीह के पीछे मैं चलता हूं, यीशु मसीह का चेला मैं जब बन चुका हूं, it should not be only in words. ये ना ही केवल हमारे शब्दों से बयां होना चाहिए, It should be in an action. ये तो हमारे कार्यों में दिखना चाहिए. As James says, our faith and work both should go together. जिस प्रकार याकूब कहता है कि हमारा विश्वास और हमारा कार्य दोनों एक साथ समान चलने चाहिए. The first responsible work for disciple was being part of prayer. सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य, जिम्मेदारी जिसमें चेलों को रहना चाहिए था, वो ये था कि वे प्रार्थना में सहभागी रहे. And that's what they were doing. और वही तो वो कर रहे थे. Jesus himself was the best example for being a prayer warrior. और यीशु मसीह खुद भी प्रार्थना के एक शूरवीर थे, प्रार्थना के एक योद्धा थे खुद के जीवन के अंदर भी. Whenever he depart from the disciples, Jesus used to go in a separate place and he will spend time in prayer. और अनेक ऐसे बार सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह चेलों को छोड़कर अलग से एकांत में प्रार्थना करने के लिए जाते थे. That's what he taught to his disciples also. और यही बात तो उन्होंने अपने चेलों को भी सिखाई. Prayer life is very important. प्रार्थनामय जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है. When we are in Christ, or when we are, our life should be a life of prayer. जब हम यीशु मसीह में हैं, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो हमारा जीवन तो प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए. That will change your identity as well as it will benefit to the others' lives. और ये ना ही केवल आपकी पहचान बदलेगा, परंतु इसके साथ साथ दूसरे जीवनों को भी इससे लाभ होगा. Prayer is very important. प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है. I used to share with some of my friends, when we pray, 3 things happens. मैं ऐसे अपने मित्रों को कहा करता था कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो 3 चीजें होती है. When we pray, we sometimes get an immediate answer. सबसे पहले जब प्रार्थना करते हैं तो तुरंत ही हमें उसका उत्तर मिल जाता है. And we are so happy. Praise God. Hallelujah. और हम बहुत ही खुश हो जाते हैं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. Second thing, when we pray, the answer will be delayed. और दूसरी बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो शायद जो जवाब है वो देरी से हमें मिलता है. And when the answer is delayed, again question comes to our mind and we become down or nervous. और फिर जब जवाब जो है वो देरी से आता है, तब हम फिर से अपने मनों के अंदर प्रश्न आते हैं और फिर हम निराश और हताश हो जाते हैं. Third thing, when we don't get answer, very danger zone we are. और तीसरी बात, जब हमें उस प्रार्थना का उत्तर ही ना मिले तो बहुत ही खतरेमय जगह में है हम शायद. Because when we don't get an answer, we stop praying. क्योंकि हमें जब जवाब नहीं मिलता है तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं. Disciple life should be a life of prayer that will change a disciple's identity as well as it will help to impact some other people's life. और एक चेले या फिर एक चेलों का जीवन तो प्रार्थना में जीवन होना चाहिए, जिससे कि उनकी खुद की पहचान तो बदलेगी, परंतु उनके जीवन के द्वारा अनेक ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा. Now here another personality is a beggar man. और यहाँ पर दूसरा जो मुख्य चरित्र है वो ये एक भिखारी की बात है. यहाँ पर Disciples are giving a best example of prayer life. यहाँ पर चेले जो है प्रार्थना में जीवन का श्रेष्ठ ऐसा उदाहरण हमें दे रहे हैं. As well as the second personality, beggar, he is giving a best example of faith. और यहाँ पर दूसरा जो चरित्र है, जो भिखारी का जो चरित्र है, वो श्रेष्ठ ऐसा उदाहरण हमें विश्वास के लिए देता है. Now the situation of this beggar is actually very worst. और यहाँ पर ये जो भिखारी की जो अवस्था है वो बहुत ही बुरी है. First of all, he is not able to help himself, so he needs someone to help him. इस सबसे पहली बात कि वो अपने आप को मदद नहीं कर पाता, इसलिए उसको दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है.
he has to depend someone can carry him and drop him into that place. उसको इस बात के लिए भी निर्भर होना पड़ता कि कोई उसे उठाकर उस भीख मांगने की जगह पर लेके जाके रखे. Maybe after sitting into that particular place, he is expecting either food or money, which is his basic needs. और फिर वहां पर बैठने के बाद भी वो आशा रखता है कि कोई ना कोई उसे आके पैसा या फिर खाना दे, क्योंकि ये तो उसकी मूल जरूरत है. And that was a daily routine from long back. और ये तो उसका काफी समय से, काफी अरसे से यही इसका दिनचर्या था. But the interesting thing, पर यहाँ पर जो सबसे रसप्रद बात है वो ये है, when a follower or disciple of Christ whose identity is changed, when they are passing through, they are giving an impact to this poor beggar. यहाँ पे रसप्रद बात है वो ये है कि यीशु मसीह के चेले जिनके खुद के जीवन परिवर्तित हो चुके हैं, वे जब इस भिखारी से गुजरते हैं तब इनके जीवन के द्वारा इस भिखारी के जीवन पे भी एक असर पड़ती है. Acts 3:3 it says, when he saw Peter and John about to enter, he asked them for money, which was his basic need. और यहाँ पर तीसरे अध्याय के अंदर लिखा है कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे उसने भीख मांगी, जो उसकी मूल जरूरत थी. Then fourth verse says, Peter looked straight at him as did John. Then Peter said, look at us. और फिर चौथे अध्याय के अंदर, चौथे पद के अंदर पतरस ने यूहन्ना से के साथ उसके ओर ध्यान से देखकर कहा कि हमारी ओर देख. And very important thing, what Peter and John said, how this beggar man responded in 5th verse. और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस प्रकार इस भिखारी ने प्रत्युत्तर दिया, प्रतिसाद दिया. 5. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. और 5वां पद, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा. It was his basic need. He was sitting there to get his needs. और वो इसकी मूल जरूरत थी, वो यहाँ वहां पर बैठा ही इस जरूरत को पूरा करने के लिए था. And then Peter and John said, look at us, and he's paying an attention to them. और फिर वहां पर पतरस और यूहन्ना उसको कहते हैं कि हमारी ओर देख, और वहां पर लिखा है कि और वो उसके सामने ताक के, मतलब ध्यान से देखने लगा. Very curiously, he is responding as he is looking at Peter and John. बहुत ही सक्रिय रीति से वो प्रतिसाद दे रहा है जब वो पतरस और यूहन्ना के प्रति देख रहा है. Maybe he do not know what is going to happen next, or nobody knows what is going to happen to next. और शायद उसको या फिर किसी और को पता नहीं है कि उसके बाद आगे क्या होने वाला है. And then Peter said, silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. और फिर पतरस कहता है कि सोना या चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं. यीशु मसीह नासरी के नाम में तू उठ चल. Now someone is telling, come in the name of Jesus, you get up and walk. और फिर यहाँ पे कोई कहता है कि यीशु मसीह के नाम में आके तुम चलने लगो. Before get up from that place, again that person might have very questions in his mind. और वहां पर उस जगह से उठने से पहले भी उसके मन में अनेक ऐसे प्रश्न आए होंगे. But he responded well, and he obeyed what Peter and John said. परंतु उसका प्रतिसाद बहुत ही हकारात्मक था, और जैसे पतरस और यूहन्ना ने कहा वैसे ही उसने कार्य किया. A curious expectation of a person change his life when we turn the verses at the end of this passage. और जब हम इस शास्त्र पाठ के अंत में आते हैं तब हम पाते हैं कि ये जो भिखारी की जो आशा थी, इस आशा ने उसके पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया. He followed what disciples said. और जो जो चेलों ने कहा उसने वो उसका पालन किया. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with him into the temple courts, walking and jumping and praising God. Hallelujah.
और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टाटों में बल आया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। His basic need he was expecting for some food or money. और उसकी मूल जरूरत तो बस वो ऐसी आशा रख रहा था कि खाना या फिर कुछ पैसे उसको मिल जाए। But when he listened, when he obeyed what actually Paul and Peter said, in the name of Jesus, get up, and that word changed that person's life. और फिर उसके विपरीत हम जब पाते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना ने उसे जो कहा उसका उसने जब पालन किया तो उसके जीवन जो था वो पूर्ण रीति से परिवर्तित हो गया। Amen. His faith increased. उसका विश्वास जो था वो और बढ़ गया। That we can see in verse 8, because he believed, he understood what happened with his feet and ankles. He joined with them into the worship and prayer. और फिर उसने विश्वास किया, उसके पांवों में उसके घुटनों में क्या हुआ उसने उसका अनुभव किया और उसकी वजह से वो उनके साथ स्तुति और आराधना करने के लिए जुड़ गया। That faith and the trust what they found in Jesus' name, he found himself as a new person. और जब उसने यीशु मसीह के उस नाम में विश्वास और भरोसा किया, उसने अपने आप में अपनी एक नई पहचान यीशु मसीह में पाई। It's very important. The responsibility of disciples, they are saying that I do not have anything, but I have Jesus. और वहां पर वो जो चेलों का जो प्रतिसाद था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि मेरे पास और कुछ नहीं है परंतु मेरे पास केवल यीशु मसीह है। If you want, take it. That will change your identity. अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको पा लीजिए, अपने जीवन में स्वीकार लीजिए, इससे आपकी पहचान बदल जाएगी। That beggar was just waiting for a new identity of his life. और वो भिखारी तो अपने जीवन में एक नई पहचान की राह देख रहा था। His expectation was money and food, but see, the name of Jesus changed his identity. उसकी आशा तो केवल पैसा और खाना था, परंतु उसकी यीशु मसीह की पहचान की वजह से उसकी पूरी पहचान बदल गई। Amen. And how we can find out, or where we can find out, we see in the verse 9. और उसको हम 9वें पद में पढ़ते हैं। Can you please read it in verse 9? सब लोगों ने उनसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखा। Amen. What people saw, people realized, oh, this was the person who was sitting outside and begging. Now he is not that beggar. He is changed person. और वहां पर उन लोगों ने देखा कि ये तो वही था जो सुंदर नाम के फाटक पर बैठ के भीख मांगता था, परंतु उसकी पहचान अभी वही नहीं रही, परंतु बदल चुकी है अभी उसकी पहचान। Oh my dear friend, when Jesus enters in our life, our identity will be changed. और मेरे प्यारे मित्रों, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो हमारी पहचान बदल जाती है। You are no more an old person. आप अभी वो पुराने व्यक्तित्व में नहीं है। You are not with that old stories and old sad things and all, but when you are in Christ, your new identity will bring joy and happiness in your life. अब आप वही अपनी पुरानी कहानियों, पुराने दुखों में नहीं है, परंतु जब आप यीशु मसीह में होते तो उस नई पहचान से आपके जीवन में अलग आनंद और अलग उत्साह उत्पन्न होता है। When we experience Jesus Christ, our identity will change. जब हम यीशु मसीह का अनुभव अपने जीवन में करते हैं तो हमारी पहचान बदल जाती है। Now, when he followed what disciples said, after that he put faith and trust what Peter and John said. अब चेलों ने जो कहा उसका अनुसरण करने के बाद पतरस और यूहन्ना ने जो कहा उस पर उसने अपना भरोसा भी रखा, विश्वास भी किया। That brought healing in his life. और उससे उसके जीवन में चंगाई आई। This healing was not just a physical healing of his feet or his body. और ये जो चंगाई थी ये केवल उसके शारीरिक चंगाई नहीं थी जो उसके पांवों ने या फिर उसके घुटनों ने या फिर उसके शरीर ने उसका अनुभव किया। It was life changing transformation.
ये तो जीवन परिवर्तित करने वाला एक परिवर्तन था। It was a transformation which going to give him a new identity. ये तो एक ऐसा परिवर्तन था जो उसको एक नई पहचान देने वाला था। Dear friends, प्यारे मित्रों, let me encourage you. मुझे आपको प्रोत्साहन देने दीजिए। When we follow Christ or when we accept Jesus as our personal Savior, it's not only our identity will change, but also our value increases. और हम जब यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो केवल और केवल हमारी पहचान नहीं बदलती है, परंतु हमारा पूर्ण ख्रिस्त में का मूल्य बदल जाता है। Amen. You are not a simple person like old person. आप कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं रहे हैं अभी, But now you are a follower of Jesus Christ because you have found a new identity in Jesus. परंतु अब आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उसके अनुयायी हो चुके हैं, क्योंकि आपने उसमें अपनी एक नई पहचान को पाया है। One of another observation which we find in this place, when the beggar found a new transformed life, he left the thing with disciples into the temple. और यहाँ पर दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब उसकी जीवन में उसकी पहचान बदल गई, तब उसके जो पुराने कार्य थे वो भी वो छोड़कर चेलों के साथ मंदिर में गया। When we experience Christ in our life, our identity will be changed. जब हम हमारे जीवन में यीशु मसीह का अनुभव करेंगे तो हमारी पहचान बदल जाएगी। Our value will be increased. हमारा मूल्य बढ़ जाएगा। We are precious in the sight of God. हम परमेश्वर की नजरों में अति मूल्य है। A beggar man, when he got up and went inside to the temple for worshipping, people found out that this person is now changed. जब एक भिखारी व्यक्ति अपनी भीख मांगने की जगह से उठकर मंदिर में स्तुति करते हुए गया, तब लोगों ने देखकर उसे पहचान लिया और कहा कि उसकी अब जगह बदल चुकी है। As we were talking, there are two aspects, one from the disciples and another from a beggar we can find out. जैसे हमने देखा था, हम बात कर रहे थे, उसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे दो पहलू है, एक चेलों की ओर से और दूसरा भिखारी की ओर से। Disciples are doing the responsibility, their work which Jesus has appointed for. चेले जो है वो तो वही कार्य कर रहे हैं, वही अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कर रहे हैं जो जिम्मेदारी यीशु मसीह ने उन पर रखी है। And that's why with very authority they are able to say that we have Jesus. My dear friend, do you want Jesus? और इसीलिए बहुत ही दृढ़ता से और बहुत ही हक से वो लोग ये कह पाते हैं कि हमारे पास यीशु मसीह है। मेरे प्यारे मित्रों, क्या आपको यीशु मसीह चाहिए? Remember what Matthew 28 last verses Jesus is giving to the disciples with an authority, and that's what they are applying here, that I have Jesus, walk. और इसीलिए हम पहले अगर देखें तो मत्ती 28 में जिस प्रकार का हक, जिस प्रकार की जिम्मेदारी और शक्ति यीशु मसीह चेलों को देते हैं, उसी का यहाँ पर उपयोग करते हुए वो लोग कहते हैं हमारे पास यीशु मसीह है, तू उठ चल। This is what our responsibility as a disciple or as a follower of Jesus Christ. और यही हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारा कार्य है कि यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें ये सब कुछ करना चाहिए। I always encourage our dear beloved people of God, I always encourage my dear people of God that you carry Jesus with you and He will carry you. मैं हमेशा मेरे प्यारे मसीह भाइयों बहनों को ये प्रोत्साहन देता हूँ कि तुम अपने साथ यीशु मसीह को लेकर चलो, वो तुम्हें उठा लेगा तुम्हारी हर एक परिस्थितियों में से। Amen. Disciples were walking with Jesus and Jesus was always with them. That's why they were able to say, our dear brother, in the name of Jesus, you get up and walk.
और हम यहाँ पे यही पाते हैं कि चेले भी यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, इसलिए यीशु मसीह भी हमेशा उनके साथ उपस्थित थे और इसीलिए वे कह पाते थे कि हमारे पास यीशु मसीह है, प्यारे भाई तू उठ चल। The second aspect, a beggar who is no more a beggar or who is no more an unidentified person, but he is the new identity in Jesus Christ. और दूसरा पहलू ये है भिखारी का कि जो उसकी पुरानी पहचान थी भिखारी की वो बदल चुकी है, परंतु यीशु मसीह में वो अब एक नई पहचान को उसने अपने जीवन में स्वीकारा है। If I will ask a question, what is our identity? यदि मैं आपको प्रश्न पूछूं कि हमारी पहचान क्या है, What is my identity? मेरी पहचान क्या है, How people knows us? हमें किस तरह से लोग पहचानते हैं, Are we able to say in the name of Jesus? क्या हम ये कह पाते हैं कि हमें हमारी पहचान यीशु मसीह के नाम में है? Dear friends, as a disciple or as a follower of Christ, let us be assured that Jesus is with us and we are walking with Jesus. That will change your identity as well as others' identity. मेरे प्यारे मित्रों, ये आप हमेशा याद रखिए कि हमें मसीह होने के नाते यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे, उससे हमारी पहचान बदलेगी और हमारी पहचान बदलने की वजह से दूसरे लोगों पर भी उसकी असर पड़ेगी और उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। Many of you might have read this passage in different way or God has spoke to you in different way. अनेक बार आपने इस शास्त्र पाठ को पढ़ा होगा और परमेश्वर ने अलग रीति से आपके साथ बातचीत की होगी शायद। But whenever I read this passage, I found a new inspiration that how a beggar found a new identity in Jesus Christ. परंतु जब भी मैं इस शास्त्र पाठ को पढ़ता हूँ तब मुझे ये याद यहाँ पर होता है कि किस तरह से यीशु मसीह ने उस भिखारी की पूरी पहचान को बदल दिया और उसको एक नई पहचान नवाजी। And what is disciples' responsibility? They were very particular in that prayer time and they found this person in the very particular time, and that person, a beggar, got a new life or new identity. और वहां पर चेलों की जिम्मेदारी क्या थी? प्रार्थनामय जीवन के अंदर वे आगे बढ़ रहे थे और उसी नियुक्त किए गए समय में नियुक्त की गई जगह पे वे लोग इस भिखारी को मिले और उस भिखारी की जीवन बदल गई पूरी, उसकी पहचान उसको नहीं मिली। Prayer can change the situation. प्रार्थना परिस्थितियों को बदल सकती है। Faith brings healing. और विश्वास से चंगाई होती है। And faith and prayer both will bring a new identity in a common man. और एक विश्वास और प्रार्थना से एक साधारण जीवन के अंदर एक नई पहचान उत्पन्न होती है। I want to encourage at the concluding remarks. मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ इस अंत के कुछ शब्दों में। Let us bow down and kneel down to the God and pray. आइए हम झुक के और घुटनों पर गिर के हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। Have that trust and carry Jesus with you always. और वो भरोसा रखिए और हमेशा अपने साथ यीशु मसीह को लिए चले। And He will carry you. और वो आपको उठा लेंगे। That will change your life as well as it will give a new identity to the others. वो ना ही केवल आपके जीवन को परिवर्तित करेगा परंतु वो आपके द्वारा दूसरों को भी एक नई पहचान देगा। A question when I asked at the beginning. जो एक प्रश्न मैंने आपको शुरुआत में पूछा था। Who are we or who am I? हम कौन है या फिर मैं कौन हूँ? What is our identity? हमारी पहचान क्या है? Our identity is Jesus Christ. हमारी पहचान तो यीशु मसीह है। Christ who can transform the lives. मसीह जो जीवनों को परिवर्तित कर सकता है। Christ who gives us a new identity. मसीह जो हमें एक नई पहचान देता है। Carry Jesus with you and He will carry you. यीशु मसीह को अपने साथ लिए चले और वो आपको लेके चलेगा। Let us close our eyes. आइए हम प्रार्थना करेंगे। I would like to pray
as Brother Joel will translate a short prayer for all of us. Gracious Lord, we want to thank you for this assurance. कृपावन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, आपने जो हमें शांतवन दी है। Help us to be a people of prayer. हमें सहायता कीजिए कि हम प्रार्थनामय लोग होने पाए। Help us to have a faith in you. आपके ऊपर एक भरोसा हो, ऐसी हमको सहायता कीजिए परमेश्वर। Help us to have your presence always with us. हमें सहायता कीजिए और प्रभु जी अपनी उपस्थिति हमेशा निरंतर हमारे पास रखिए। And we pray that let the things will be transformed and changed only by your grace. और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से, प्रभु जी आपके अनुग्रह से अब हमारे जीवनों में परिवर्तन लाई, हमारे जीवनों को आप बदल दीजिए। Thank you for this wonderful time, Lord. ये अद्भुत समय के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। Bless this word and bless people, those who are going to watch or listen this video. बांटे गए वचन को आप आशीष दीजिए प्रभु जी, और सुनने वाले प्रत्येक के जीवनों में आप परिवर्तन लाए, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी। Thank you once again, Lord. फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। In Jesus' name we ask. यीशु मसीह के द्वारा हम मांगते हैं। Amen. Shall we all recite the Lord's Prayer together, after which I request Ashish brother to pronounce the benediction. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Let us receive the benediction. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of Father, and communion of Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you. Thank you so much.